Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester. In the last lecture, we have studied the concept of aggregate demand. Aggregate demand basically shows the relationship between the overall price level and output demanded by the economy, or you can say that real GDP demanded by the economy. We have also studied that there is an inverse relationship between the price level and output demanded by the economy. We have also studied that why aggregate demand curve is negatively sloped. In the last lecture, we have 3 reasons that explain why aggregate demand curve is negatively sloped. Real balance effect, second one is interest rate effect, and third one is foreign purchase effect. Hopefully you have enjoyed the lecture, and today we are going to discuss the next topic, which is changes in aggregate demand and determinants of aggregate demand. Aggregate demand basically shows the relationship between the price level and real GDP demanded by the economy, or you can say that aggregate demand is a schedule or curve that shows the amount of real GDP output that buyers collectively desire to purchase at each possible price. You can say that aggregate demand shows the relationship between the price level and real output that buyers collectively desire to purchase at each possible price. So aggregate demand curve shows the inverse relationship between the price level and real output that buyers collectively desire to purchase at each possible price. You can say that higher price level is associated with the lower real GDP demanded by the economy, and lower price level is associated with the higher real GDP demanded by the economy. There is an inverse relationship between the price level and real GDP, that is aggregate demand. Here you can see the aggregate demand curve. On the y-axis there is the price level, and on the x-axis there is the real GDP or output, and you can see the inverse relationship. We have already discussed the 3 reasons that explain the negative association between price level and real GDP, or you can say that 3 reasons that explain why aggregate demand curve is negatively sloped. Today we are moving towards further extension of this topic, that is changes in aggregate demand. Other things remaining same, a change in the price level will change the amount of aggregate spending, and therefore change in the amount of real GDP demanded by the economy. Movements along with the fixed aggregate demand curve represents these changes in real GDP. However, if one or more of those other things change, the entire aggregate demand curve will shift. We call these other things determinants of aggregate demand. You can say that मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. देखें, एग्रीगेट डिमांड में 2 तरह की चेंजेस हो सकती है. एक तो ये है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व के साथ मूवमेंट हो, अलोंग विद द एग्रीगेट डिमांड कर्व, मतलब राइट साइड पे मूवमेंट हो, लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट हो, इसी कर्व के साथ ही वो होगी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल. मतलब वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसकी वजह से डायग्राम बनी है ना, वाई हमने प्राइस लेवल का इम्पैक्ट शो किया रियल जीडीपी पे, तो ये डायग्राम बन गई एग्रीगेट डिमांड कर्व की. तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस लेवल अगर चेंज होता है तो उस केस में मूवमेंट अलोंग विद द एग्रीगेट डिमांड कर्व होगी, मूवमेंट अलोंग विद द एग्रीगेट डिमांड, अदर थिंग रिमेनिंग सेम. और अगर फिर अदर थिंग चेंज होती हैं तो उस केस में मूवमेंट नहीं होगी, उस केस में एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा. अगर प्राइस लेवल चेंज होता है तो उस केस में क्या होगा, मूवमेंट अलोंग विद द एग्रीगेट डिमांड कर्व. अगर प्राइस लेवल चेंज होगा, ओवरऑल प्राइस लेवल, तो क्या होगा,
मूवमेंट अलोंग विद द एग्रीगेट डिमांड कर्व। और अगर अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो उस केस में क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व। आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। और ये जो अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा, इनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। शिफ्ट कैसे होगा, इंक्रीज़ होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और डिक्रीज़ होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेट अस एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड एग्जांपल्स। Here is one point more. Changes in aggregate demand involve two components. A change in one of the determinant of aggregate demand that directly changes the amount of real GDP demanded. अब देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की वजह से, एक डिटर्मिनेंट्स जो है वो एग्रीगेट डिमांड के उससे डायरेक्टली जीडीपी को अफेक्ट करते हैं। और दूसरा पॉइंट है मल्टीप्लायर इफेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर अल्टीमेट चेंज इन एग्रीगेट डिमांड देन द इनिशियल चेंज इन द स्पेंडिंग। एक तो ये है कि कंजम्पशन बढ़ी है, जीडीपी भी बढ़ जाएगी। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, उससे जीडीपी कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो जो शिफ्टिंग है एग्रीगेट डिमांड में, उसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, अदर फैक्टर की वजह से जीडीपी जो है वो अफेक्ट होती है। अदर फैक्टर की वजह से जीडीपी जो है वो अफेक्ट होती है। दो तरह से अफेक्ट होती है। एक तो ये है कि जितना स्पेंडिंग वेरिएबल में, जितना उसके डिटर्मिनेंट में इजाफा हुआ उतना ही जीडीपी में इजाफा हो जाए। और दूसरा ये है कि जितना स्पेंडिंग वेरिएबल या डिटर्मिनेंट में इजाफा हुआ जीडीपी में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जिस तरह मल्टीप्लायर, उसे ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया था। देखिए ना कि अगर इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है तो उससे जीडीपी में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट में कमी आती है तो उससे जीडीपी में कई गुना ज़्यादा कमी आ जाती है। तो ये मैं आपको डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये देखें, एग्रीगेट डिमांड कर्व है, इंक्रीज़ होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, डिक्रीज़ होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। जो इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसे AD1 से ज़ाहिर किया गया है। उसके राइट साइड पे आप देखें डॉटेड लाइन है। जो डॉटेड लाइन है वो क्या ज़ाहिर कर रही है, जो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ है। और साथ में आगे एक और एक्सटेंड करके लाइन लगाई हुई है एग्रीगेट डिमांड, वो है मल्टीप्लाइड इफेक्ट। वो क्या है, मल्टीप्लाइड इफेक्ट। इसी तरह जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड में जो कमी आई है। और फिर जो AD3 लगाया गया वो क्या है, ड्यू टू मल्टीप्लाइड इफेक्ट। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इन द अबव फिगर द फुल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व फ्रॉम AD1 to AD2 shows an increase in aggregate demand separated into two components। जो इंक्रीज़ हुआ है उसको टू कंपोनेंट्स में हमने सेपरेट किया है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AD1 एंड द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स एन इनिशियल इंक्रीज इन स्पेंडिंग से 5 बिलियन ऑफ एडेड इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट में $5 बिलियन जो है वो इजाफा हुआ है। तो $5 बिलियन की वजह से जीडीपी पे जो इफेक्ट हुआ होगा उसको इनिशियल को बता रहा है ये डॉटेड लाइन। इफ़ द MPC इज़ 0.75, इफ़ द MPC इज़ 0.7 फॉर एग्जाम्पल, देन सिंपल मल्टीप्लायर इज़ 4। अगर MPC 0.75 है तो इससे मल्टीप्लायर क्या होगा, 4। कैसे कैलकुलेट किया मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर का फार्मूला है 1/1 माइनस MPC। इट मीन्स 1/1 माइनस 0.75 that is equal to 1/0.25 which is equal to 4. So the value of MPC will be 4. MPC की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 4। अब इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है $5 बिलियन का, जो डॉटेड लाइन से हमने कहा है कि ये इनिशियल स्पेंडिंग होगी, इंक्रीज़ हो गई। अब उसका जीडीपी पे क्या इफेक्ट जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लायर से। अगर आपको याद हो फार्मूला मल्टीप्लायर का, दूसरा फार्मूला वो था चेंज इन रियल जीडीपी इज़ इक्वल टू मल्टीप्लायर बाय चेंज इन इनिशियल स्पेंडिंग, और यू कैन से दैट चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है $5 बिलियन का, जबकि मल्टीप्लायर है हमारे पास 4। तो 4 और 5 दोनों मल्टीप्लाई होंगे
टू शो द अफेक्ट एज इन द रियल GDP, तो वो आ जाएगा कि रियल GDP में कितना इजाफा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4. सो द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम AD1 टू AD2 4 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन AD1 एंड द डॉटेड लाइन, उससे 4 टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइड इफेक्ट उसने किया. Here you can see that increase in real GDP is equal to multiplier multiply by initial increase in investment. ये वही फार्मूला है जो मल्टीप्लायर का हमने लिखा था, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इंक्रीज इन GDP ओवर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. सेम है, चेंज इन GDP ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो इस तरीके से आप देखें. अब देखें, जो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है $5 बिलियन का. अब वो रिप्रेजेंट है डॉटेड लाइन से, ठीक है, ये उसकी वजह से जो GDP में इजाफा. अब GDP पे उसका जाएगा मल्टीप्लाइड इफेक्ट. अगर MPC 0.75 है तो मल्टीप्लाई उसकी मदद से हम निकालेंगे, वो बनेगा 4. तो GDP पे इसका इम्पैक्ट जाएगा $20. 4 मल्टीप्लाई बाई 5, $20. होपफुली ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज़ कंज्यूमर स्पेंडिंग. अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगी. एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड. अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग कम है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी. एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड. अब कंज्यूमर स्पेंडिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं. कंज्यूमर स्पेंडिंग किन वेरिएबल्स की वजह से इफेक्ट होती है, उनमें से सबसे पहले है कंज्यूमर वेल्थ. अगर कंज्यूमर वेल्थ ज़्यादा है, कंज्यूमर के एसेट ज़्यादा हैं. कंज्यूमर वेल्थ किसे कहते हैं? कंज्यूमर वेल्थ इज़ द टोटल डॉलर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ओन्ड बाय कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी लेस द डॉलर वैल्यू ऑफ देयर लाइबिलिटीज डेट्स. एसेट्स इंक्लूड्स stocks, bonds, real estate, while liabilities include mortgages, car loans and credit card balances, so on. तो अगर कंज्यूमर वेल्थ ज़्यादा है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगी. एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड. ऑन द अदर हैंड, अगर कंज्यूमर वेल्थ कम है तो कंज्यूमर डिमांड भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी. एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. इट इज़ वेरी सिंपल, सो डोंट यू वरी. आप इसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो बिहेव करता है. सेकंड पॉइंट इन द कंजम्पशन इज़ हाउस होल्ड बोरिंग. हाउस होल्ड बोरिंग ज़्यादा होगी तो आप कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे. एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड. देखिए, हम हाउस होल्ड बोरिंग करते क्यों हैं? अब हाउस होल्ड बोरिंग करेगा तो वो ऑब्वियसली कंजम्पशन करने के लिए ही करेगा, सेविंग करने के लिए तो बोरिंग नहीं करेगा ना, क्योंकि जो उसने बोरो किया है उसको कॉस्ट पे करना पड़ती है. डेट्स वाई वो सेविंग करने के लिए कभी भी बोरो नहीं करता. हाउस होल्ड बोरिंग करेगा तो उससे कंजम्पशन में इजाफा होगा. सो एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड. इसी तरह हाउस होल्ड बोरिंग अगर कम होगी तो फिर कंजम्पशन स्पेंडिंग भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी. एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. थर्ड पॉइंट इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग इज़ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे कंजम्पशन पैटर्न पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड पे भी अफेक्ट करती हैं. हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो हमारी कंजम्पशन स्पेंडिंग पे बहुत अफेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व पे भी अफेक्ट करती हैं. कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन देखें, अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में हमारी इनकम इंक्रीज़ होने वाली है तो क्या होगा, हमारी कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड. और अगर हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में हमारी इनकम कम होने वाली है, फ्यूचर में हमारी इनकम कम होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, कंजम्पशन स्पेंडिंग कम कर देंगे. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी. एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. Another point is personal taxes in the consumer spending. Consumer spending is also affected by the personal taxes. These are maybe direct taxes. Personal taxes. Personal taxes like अगर आपको पता हो कंजम्पशन की, अगर आपको इक्वेशन याद हो, C is equal to C naught plus small c by D.
C इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई डी। अगर आपको याद हो, वाई डी इज़ डिस्पोजेबल इनकम। Consumption depends upon disposable income. Consumption spending depends upon disposable income. Disposable income means income after paying taxes is called disposable income. YD is equal to Y minus T. YD is equal to Y minus T. YD is equal to Y minus T. Income after paying taxes is called disposable income. तो आपका कंजम्पशन पैटर्न जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। अगर तो पर्सनल टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। इस केस में आपकी कंजम्पशन स्पेंडिंग भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड, अगर पर्सनल टैक्सेस कम है, पर्सनल टैक्सेस कम होंगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी। डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगी। एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। सेकेंड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड उस पर, इन्वेस्टमेंट को तो एग्रीगेट डिमांड पे मल्टीप्लाइड इफेक्ट है, हमने मल्टीप्लाई में भी पढ़ा है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगी। एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। इन्वेस्टमेंट कम है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। अब इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है और अल्टीमेटली ये एग्रीगेट डिमांड पे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रियल इंटरेस्ट रेट। एज यू नो, व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो उससे इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी, बिकॉज देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। आपने स्टडी किया है कि इंटरेस्ट रेट में और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो उससे इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड, अगर इंटरेस्ट रेट में कमी आती है, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, देन योर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल इंक्रीज। क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा पैसा बोरो करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। अनदर डिटर्मिनेंट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न में भी यू कैन से दैट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और यू कैन से दैट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसी तरीके से हम प्रॉफिट को या रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होने का मतलब है कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है तो आप इन्वेस्टमेंट में देखें ना, ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है आपको तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड कर विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। इसी तरह अगर लो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मतलब आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, तो आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कर विल शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड। क्लियर है ना? एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। एक्सपेक्टेड रिटर्न may also be affected by the following variables. These following variables affect the expected return, which ultimately affect the aggregate demand, investment and aggregate demand as well. ये जो डिटर्मिनेंट आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वेरिएबल्स, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न को अफेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है और इन्वेस्टमेंट फिर एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती है। इस तरीके से एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस, मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशन। आप जो है वो बड़े पुर उम्मीद हैं
फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस के बारे में कि फ्यूचर बिजनेस कंडीशन जो है वो बहुत ब्राइट हैं, बहुत अच्छी होंगी, तो आपको मोर एक्सपेक्टेड रिटर्न नज़र आएंगे। आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। मतलब अगर आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस, आप को ज़्यादा रिटर्न नज़र आ रहे होंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड। इसके आप वाइस वर्सा देखें, अगर आप ज़्यादा पुरुमीद नहीं है फ्यूचर कंडीशंस के हवाले से, फ्यूचर बिजनेस कंडीशन के हवाले से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है, तो आपको रिटर्न भी कम नज़र आ रहे होंगे, आप इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी कमी करेंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। Another variable of expected return is technology. टेक्नोलॉजी जितनी आप इम्प्रूव्ड यूज़ करेंगे, जितनी आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और उतने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो ज़्यादा होंगे। उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और उतने एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होंगे। जितने एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होंगे, जितने एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होंगे, उतने ही आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग करेंगे और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड। ऑन द अदर हैंड, जितनी आप आउटडेटेड और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जितनी आप आउटडेटेड और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उतनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी, उतने ही आपको कम रिटर्न नज़र आएंगे, उतनी ही इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ़्ट साइड, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ़्ट साइड। क्लियर है पॉइंट? जितनी हम बैकवर्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उतनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उतने ही रिटर्न आपको कम मिलेंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ़्ट साइड। अनदर वेरिएबल इन द expected return is degree of excess capacity. Rise in excess capacity, unused capital. There will be a low expected return on new investment. देखिए, अगर excess capacity कैपिटल एक्सेस हो गया है आपके पास, ठीक है, तो आपको expected return on new investment कम नज़र आएंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो जाएगी एंड जिससे अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ़्ट साइड। अगर एक्सेस कैपेसिटी में इजाफा हो गया है, आप ये कह लें कैपिटल स्टॉक में इजाफा हो गया है, ठीक है, अनयूज्ड कैपिटल में इजाफा हो गया है, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट कम नज़र आएंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ़्ट साइड एंड वाइस वर्सा इज़ आल्सो ट्रू। बिजनेस टैक्सेस अगर ज़्यादा होंगे, बिजनेस टैक्सेस अगर ज़्यादा होंगे तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, लो एक्सपेक्टेड रिटर्न, लो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिससे इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ़्ट साइड। इसी तरह अगर बिजनेस टैक्सेस कम होंगे तो आपको हाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नज़र आएगा, हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न नज़र आएंगे, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में इजाफा कर देंगे आप, जिससे एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड। आप देखिए ना कि जैसे ग्वादर को टैक्स फ्री जोन बनाया गया है, बेसिकली वो इसीलिए बनाया है ना, बिजनेस टैक्सेस कम किए हैं या ख़त्म किए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा रिटर्न नज़र आए, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कर सके वहाँ पे, जिससे एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा। क्लियर है ना पॉइंट? थर्ड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है? गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा देती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवा देती है, गवर्नमेंट पार्क्स बनवाती है, रोड्स बनवाती है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कह लें या गवर्नमेंट परचेजेज जितनी ज़्यादा होगी वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड। इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम होगी तो उतनी ही एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। अनदर
मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग। नेट एक्सपोर्ट हमने लिखा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर नेट एक्सपोर्ट बैलेंस ये इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव होने का मतलब है आप देखें ना नेगेटिव है, अगर नेगेटिव कब होगा जब इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी एक्सपोर्ट से, और पॉजिटिव कब होगा जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी इंपोर्ट से, तब पॉजिटिव होगा। तो इम्प्रूव होने का मतलब है ओब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, इम्प्रूव होने का मतलब है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए। तो अगर नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इम्प्रूव होगा तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। इसी तरह अगर नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इम्प्रूव नहीं होता मतलब एडवर्स जाता है, एडवर्स होने का मतलब क्या है कि नेगेटिव वे में जाए हैं, मतलब एडवर्स होने का मतलब है कि इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं एक्सपोर्ट से, एडवर्स जाए। अगर आपका नेट एक्सपोर्ट बैलेंस एडवर्स जाता है तो उस केस में एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी। देखें ना, क्योंकि इंपोर्ट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं एग्रीगेट डिमांड में से, एक्सपोर्ट जो है वो प्लस होती हैं। तो अगर आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड का भी शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड। नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग में आल्सो भी इफेक्टेड बाय द फॉलोइंग वेरिएबल। फर्स्ट वन इज़ नेशनल इनकम अब्रोड। तमाम कंट्रीज़ आपस में इंटरलिंक है। अब दूसरे कंट्रीज़ की इनकम से भी जो है वो नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग हमारी इफ़ेक्ट होती है, हमारी एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट हो जाती है उससे भी। किस तरीके से देखें, लेट्स से कि देयर इज़ अ राइज इन द नेशनल इनकम अब्रोड, दूसरे कंट्रीज़ की इनकम में इजाफा होता है, उससे क्या होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। कैसे होगा, देखें 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 पाकिस्तान की, लेट्स से कि पाकिस्तान की इनकम में इजाफा होता है, तो क्या चाइना के एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा या नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान को आती हैं। तो अगर पाकिस्तानियों की इनकम में इजाफा होगा तो चाइना की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। अगर अमेरिका की इनकम में इजाफा होगा तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, क्योंकि हमारी 18% एक्सपोर्ट अमेरिका को जाती हैं। लेट्स से अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो हैं वो अमेरिका को जाती हैं, ठीक है। तो और ऐसा है भी, वैसे भी ऐसा ही है, हमारी मेजर एक्सपोर्ट अमेरिका को जाती हैं, चाइना का भी मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर अमेरिका ही है। तो अगर अमेरिका की इनकम बढ़ती है तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, ऑब्वियसली उनकी इनकम बढ़ने से उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने से हमारा नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव होगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। इट मीन्स कि दूसरे कंट्रीज़ की इनकम का असर भी हमारी जीडीपी पर होगा, दूसरे कंट्रीज़ की इनकम का असर भी हमारी जीडीपी पर होगा, इस तरीके से कि अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अगर वो आपके एक्सपोर्ट पार्टनर हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड, नेट एक्सपोर्ट बैलेंस बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड इंप्रूव होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। इसी तरह सेकंड डिटर्मिनेंट है एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता है, आपकी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट होती है, मीन्स रुपया सस्ता हो गया, या आप ये कह लें डॉलर महंगा हो गया, एक ही बात है, रुपया सस्ता हो गया या डॉलर महंगा हो गया, ये आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। तो इससे क्या होगा, योर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर चीपर। रुपया सस्ता होगा ना, तो दूसरे कंट्रीज़ के लिए रुपया सस्ता होगा, तो दूसरे कंट्रीज़ से रुपये से आने वाली चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, मीन्स आवर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर चीपर। और डॉलर महंगा हुआ है तो डॉलर से आने वाली चीज़ें भी महंगी हो जाएगी, मीन्स इम्पोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। जब इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो इम्पोर्ट्स फॉल हो जाएंगी, और जब एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएंगी, जिससे आप कह सकते हैं नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। मैं इसको रिपीट करता हूँ, पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करेंसी अगर आपकी डेप्रिशिएट होती है उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही, कैसे, करेंसी डेप्रिशिएट हुई, करेंसी डेप्रिशिएट हुई मीन्स रुपीज़ सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया, तो रुपीज़ से आने वाली चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, मीन्स योर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर चीपर। डॉलर महंगा हुआ है, इट मीन्स योर इम्पोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो जब मोर इम्पोर्ट्स आपकी एक्सपेंसिव होगी तो इम्पोर्ट्स डिक्लाइन कर जाएंगी, एक्सपोर्ट्स चीपर होगी तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। इस केस में नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड। और इसके वाइस वर्सा आप देख सकते हैं कि अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट करती है, मतलब रुपी स्ट्रॉन्ग होता है डॉलर के मुकाबले में,
तो रुपी इम्प्रूव हुआ है तो एक्सपोर्ट्स बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि रुपया महंगा हुआ है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगी एक्सपेंसिव। डॉलर सस्ता हुआ है तो डॉलर सस्ता हुआ है, करेंसी हमारी एप्रिशिएट हुई ना, डॉलर सस्ता हुआ है तो डॉलर से आने वाली प्रोडक्ट सस्ती हो जाएंगी। योर इम्पोर्ट्स बिकम मोर चिपर, तो इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी, और हमारा नेट एक्सपोर्ट बैलेंस जो है वो फॉल हो जाएगा। नेट एक्सपोर्ट बैलेंस क्या हो जाएगा, फॉल, जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। तो इस तरीके से ये वेरिएबल जो है ये यहाँ पे मैंने ओवरऑल एक टेबल में सारे आप देख सकते हैं वेरिएबल मैंने पुट किए हुए हैं जो हमने अभी थ्रू आउट द लेक्चर स्टडी किए हैं। जो मेजर डिटर्मिनेंट है वो है चेंज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड चेंज इन नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग। ये दीज आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आगे इनके सब डिटर्मिनेंट्स हैं, हमने सबको एक्सप्लेन किया है। फर्दर रीडिंग के लिए आप बुक विज़िट कर सकते हैं इकोनॉमिक बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, chapter number 29 aggregate demand and aggregate supply. Further, if you have any query you can comment me on YouTube channel, you can comment me on Google Classroom, and you can also discuss it with me in the online session on Zoom during class timings. Thank you so much students, stay blessed, Allah Hafiz.